Hello, good morning students. Welcome back to our social class. I hope you all are fit and fine. Okay, in today's lecture we are going to continue lesson number 4, India's important industries. In previous lecture, when I started with the chapter, I have explained the requirements, the basic requirements of the industries. In that class, we have studied about the basic requirements of the industries. But in today's lecture, we are going to study further the basic types of industries. There are basically three types of industries we are going to discuss. Second, the mineral-based industries in India. Mineral-based industry. Third one is agricultural-based industries in India. And the last topic is service industries. Okay, these 4 topics we are going to study in today's lecture. So students, open your book. Lesson 4, India Important Industries. In this chapter we have done this, what industries require to functions, the resource of industries. Okay, in that it requires raw materials, machines, electricity, main power and water. Okay, industries require this much of resources to function their routine. Okay, so now in this chapter we are going to study further the types of industries. Our today's topic is types of industries. Now, types of industries. What are the main types of industries? Okay, there are 3 main types of industries. First is large scale industries, small scale industries and cottage industries. The 3 main size of industries are this. Okay, large scale, small scale and the cottage industries. Let's study about this in detail. What is large scale industries? Here, large scale industries are located in large areas that are sometimes the size of the towns. टाउन्स में बेसिकली जो इंडस्ट्रीज होती है वो कैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है बड़े बड़े टाउन्स में. ओके, दे एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट जॉब दी जाती है. ठीक है, टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ दैट इंडस्ट्रीज. Okay, the factories consist of very large buildings. For an example, Tata Iron and Steel Company. कहाँ पे है? जमशेदपुर में. Where it is? In Jamshedpur. Tata Iron and Steel Company. This iron and steel company, automobile, shipbuildings, textiles, cement, coal and petroleum are some large scale industries. कौन सी है ये सारी? large scale industries जो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती है. ठीक है, और वहाँ पे thousands of employees को जॉब दी जाती है. वहाँ पे thousands of employees काम करते हैं. ओके, and these large scale industries are basically located in the towns. Many of these are run by the government of India. और इसमें से बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसको कौन चलाता है? गवर्नमेंट. ओके, चलो मूविंग टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर्ड ही आपको इंडिकेट करता है स्मॉल स्केल मतलब छोटी साइज. इसकी बड़ी साइज तो टाउन में और बहुत ज्यादा पीपल को वर्क जॉब देते थे. बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय less people, a few hundreds or even less. These industries make, क्या करते हैं ये इंडस्ट्रीज? पहले तो बहुत ही कम लोग इसमें एम्प्लॉय किए जाते हैं. बहुत ही कम होते हैं इसमें वर्कर क्योंकि उसकी साइज इतनी बड़ी नहीं होती है. These industries make leather goods, utensils, ready-made garments, electrical goods, furniture, food products, beverages and other. Generally ये सारा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में.
जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसी होती है, वर्कर्स कैसे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं. ओके, कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट कम दी कॉटेज इंडस्ट्री. नेक्स्ट कौन सी है बेटा, कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कम पीपल एम्प्लॉय करते हैं. द गुड मेड इन कॉटेज इंडस्ट्रीज आर यूजुअली हैंडमेड using simple tools or at home by members of a family. कॉटेज इंडस्ट्री कंपेयर टू लार्ज एंड स्मॉल, दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटी इंडस्ट्रीज है. ओके, इसमें इतने ज्यादा टूल्स नहीं हो सकते. आप देख सकते हो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की इमेज है. आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक मशीन अवेलेबल है. कंपेयर टू दिस यहाँ पे लिमिटेड है, बट है. ओके, इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे ऐसा कोई टूल्स अवेलेबल नहीं है. ओनली होममेड, हैंडमेड ही ये सब बनाते हैं. ठीक है, और फैमिलीज मिलके बना सकती हैं. 5 to 7 एम्प्लॉयज हो सकते हैं. ओके, बट कंपैरिजन बहुत ही लेस में. ओके, वुडन टॉयज, handicraft, pottery, pickles, papads are example of items made in the cottage industries. ये सारे हम cottage industries में बना सकते हैं. You can see few women are here and they are manufacturing. वो काम कर रहे हैं. ठीक है, बट हैंडमेड टूल्स से, खुद से. उनके पास कोई मशीन अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हो. क्लियर? चलो, मूविंग फर्दर, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. नाउ इंडस्ट्रीज हमने देखी, देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, बेसिकली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री. नाउ फ्रॉम दिस 3 मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में इन तीनों में से कौन सी इंडस्ट्रीज है? ठीक है, तो हम मिनरल बेस्ड, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं, वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है. ठीक है, बट हम इंडिया में इंडस्ट्रीज सभी नहीं पढ़ेंगे. कौन सी? ओनली मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है. ओके, एम आई क्लियर? चलो, first is iron and steel industry. Major industries in India, mineral based industries. Okay, now we are going to discuss in India mineral based industries. Industries discuss करेंगे, but कौन सी? mineral based industries. Okay, तो first is iron and steel industry. The iron and steel industry is one of the most important industries in our country. Steel is required for making machineries in almost all industries. Okay, iron and steel industries में basic requirement होती है steel की. Okay, so it is also required for making a varieties of goods. Iron and steel industries are located in Chhattisgarh, Odisha, West Bengal, Tamil Nadu, Jharkhand and Karnataka. Okay, ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो हमारे इंडिया में कहाँ पे हैं? तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड एंड कर्नाटका में. ओके, नेक्स्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इज टेक्सटाइल. ओके, टेक्सटाइल हमारी बहुत ही पुरानी इंडस्ट्रीज है. ओके, ओल्डेस्ट वन एंड द लार्जेस्ट वन ऑल्सो. The textile industry is the oldest and the largest industry in India. The most important textile factories are in Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal and Uttar Pradesh. Okay, Surat in our Gujarat is famous for its cotton and synthetic textile mills. आप देख सकते हो जहां पे क्लोथ्स मैन्युफैक्चर होते हैं जनरली. सूरत, इट इज फेमस फॉर इट्स कॉटन एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल मिल्स. कश्मीर, वाराणसी एंड कांचीपुरम आर सम ऑफ द प्लेसेस नोन फॉर देयर सिल्क इंडस्ट्री.
ओके ये जो हमने स्टडी किया वो मिनरल बेस्ड प्योर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी और इंडिया में कहाँ कहाँ पे है वो देखा. सिमिलरली coal, cement and petroleum are the other major industries in the country जो कि mineral based है. Okay, now moving further, our another topic is major industries in India. Agriculture based industries. Okay, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल आता है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, ऊपर तो मिनरल्स थे. ठीक है, तो what are agricultural based industries? Let's study. Here, sugar. So sugar is made from the sugar cane in India. Sugar जो हम घर पे यूज करते हैं इसको शुगर बोलते हैं. ओके, आप सबको पता है we use this in our day to day routine. Okay, sugar is made from the sugar cane. Sugar किस में से बनती है? sugar cane में से. The sugar is pressed, purified and processed into sugar. Sugar cane को प्रेस करते हैं, उसको प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती है एंड देन फर्दर उसकी प्रोसेस होती है और फाइनली क्या बनता है? शुगर केन. एंड इन शुगर फैक्ट्रीज, तो ये सारी जो शुगर केन पे जो प्रोसेस होती है शुगर बनाने की वो सारी कहाँ पे होती है? शुगर फैक्ट्रीज में. क्लियर? मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर इज सीजनल. तो क्यों बोला गया है कि भाई मैन्युफैक्चर यानी कि जो शुगर का प्रोडक्शन होता है वो सीजनल होता है, ईयर थ्रू आउट द ईयर इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड. क्यों? जनरली वी फाउंड दिस शुगर कैन इन विच सीजन? समर. ओके, समर सीजन में हमें शुगर कैन मिलता है, तो जैसे वो जब प्रोड्यूस होगा उसके बेसिस पे हम लोग शुगर बना सकेंगे, इसीलिए. ओके, फॉर फैक्ट्रीज फंक्शन ओनली व्हेन, फैक्ट्रीज कब फंक्शन करेगी? व्हेन शुगर कैन इज फ्रेशली हार्वेस्टेड. क्लियर बेटा? चलो, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर द बेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर इन इंडिया. ओके, द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया आर उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. Along with that, sugar is also produced in Tamil Nadu and Karnataka also. Clear? चलो, moving further on the next page is tea. Next page is the manufacture of tea. Now we all know, we have studied in our previous chapters also where the tea is grown. The tea is grown mainly in the hills of the West Bengal, Assam, Tamil Nadu and Kerala. Vast areas, vast मतलब बहुत बड़े areas of lands are covered with the tea garden. Okay, आप देख सकते हो ये tea leaves है. Okay, in leaves of a tea plant are plucked. उनको ये जो leaves हैं tea plant को उनको plucked मतलब निकालते हैं, then processed and packed in factories. Okay, क्या होता है? ये जो टी प्लांट है उसमें से लीव्स को प्लग निकालते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं एंड फाइनली टी यानी कि चाय पत्ती बन जाती है, उसको पैक्ड करते हैं. कहाँ पे ये प्रोसेस होती है? तो भाई टी फैक्ट्रीज में होती है. समझ में आया? चलो, मूविंग नेक्स्ट इज जूट. सो अगेन जूट इज द चीपेस्ट अवेलेबल नेचुरल फाइबर. ओके, क्या है? चीपेस्ट मतलब लो प्राइस पे अवेलेबल है, नेचुरल फाइबर है. जूट प्लांट्स ग्रो मेनली इन वेस्ट बंगाल. जूट प्लांट जनरली कहाँ देखने को मिलते हैं? वेस्ट बंगाल में. जूट ऑल्सो ग्रोज इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. द फाइबर फ्रॉम दिस प्लांट इज मेड इनटू रॉप्स. ये जो फाइबर है, ये जूट प्लांट में से जो हमें ये फाइबर मिलता है उसमें से वी यूज दिस फाइबर टू मेक रोप्स, गनी बैग्स और सेट्स. ओके, चलो, नाउअडेज इट इज ऑल्सो यूज टू मेक फैब्रिक फॉर क्लोथ्स एंड बैग्स. ओके, यू कैन सी द आइटम्स मेड फ्रॉम द जूट. ओके, चलो, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट इज सर्विस इंडस्ट्रीज. हमने अभी तक इंडस्ट्रीज पढ़ी, एक कौन से बेस थी? यस, मिनरल बेस थी, देन यस एग्रीकल्चर बेस थी. नाउ थर्ड वन इज द सर्विस इंडस्ट्री. तो सर्विस इंडस्ट्री क्या है? चलो देखते हैं. व्हाट आर सर्विस इंडस्ट्रीज? सो सर्विस इंडस्ट्रीज आर दोज
which do not make any goods. सर्विस इंडस्ट्री हमने जनरली अभी देखा ना आगे कि इंडस्ट्रीज का मतलब क्या, गुड्स आते हैं, रॉ मटेरियल्स आता है, उसमें से वो फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं और ये सारा जो प्रोसेस होती है वो फैक्ट्रीज में यानी कि इंडस्ट्रीज होती है. ओके, उससे हम इंडस्ट्री बोलते हैं. तो अभी तो यहाँ ऐसे बोले कि सर्विस इंडस्ट्री जो ऐसा है मीन्स विच डू नॉट मेक एनी गुड्स, यानी कि सर्विस इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद अपने गुड्स नहीं बनाती बट प्रोवाइड वेरियस इंपॉर्टेंट सर्विस टू द कस्टमर. बट जो नीडफुल सर्विस है वो कस्टमर तक प्रोवाइड करती है. ओके, चलो हमने अभी देखा कि टी हम बना रहे हैं फैक्ट्री में, जूट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, देन मिनरल्स बन रहे हैं, शुगर बनाया. ठीक है, तो ये सारा मैन्युफैक्चर करके वहां फैक्ट्री में ही रख देंगे? नो, ये पीपल तक तो पहुंचाना है ना. यस, आप तक, हम तक. ये कहाँ पे मार्केट में कौन लेके आएंगे? ये सर्विस इंडस्ट्री लेके आएगी. ओके, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो फैक्ट्रीज में गुड्स बने हैं वहां से सर्विस इंडस्ट्री उठा के हमारे तक जनरल शॉप्स तक लेके आएंगी ताकि पब्लिक अच्छे से वो परचेज कर सके. तो वो मेन काम है सर्विस इंडस्ट्री का. समझ में आया आपको? अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस सर्विस इंडस्ट्रीज आर बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म. ओके, ये मेन एक्टिविटी है सर्विस इंडस्ट्री की. चलो, now we are going to do information technology. What is information technology? The computers are used all over the world for a variety of purpose. Yes, you are using your computer to study. Okay, and we are using computers to help you in studies. Okay, but in office they are using computers for the different work. In schools also, in administration also, everywhere, in shops also, in malls also, the computers are used in many different ways. Okay, the use of computer is different for every different person. Okay, so to write programs for these we need software engineers. कुछ भी आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना हो, कुछ भी आप करवा सकते हो उससे, बट फॉर दैट यू नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ओके, सो इंडिया हैज thousands of software engineers who work for the information technology industry. It is very important service industry as it earns lots of money for the country. Okay, information technology industries means IT industries are based mainly in Bangalore, Chennai and Hyderabad. Okay, and एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ी, सर्विस इंडस्ट्री पढ़ी, मिनरल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, बट देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया. ओके, सो लेट्स गो थ्रू कि जैसे कि ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है तो वो जनरली कहाँ पे है, उसकी लोकेशन, उसके स्टेट्स दिए हैं इंडिया में. ओके, जैसे कि चेन्नई, पुणे एंड गुड़गांव. देन शिप बिल्डिंग तो मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम. एयरक्राफ्ट कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है? बैंगलोर. फायरवर्क्स एंड मैचेस जो हम यूज करते हैं वो कहाँ पे? शिवकाशी इन तमिलनाडु. रेलवे इंजिन्स कहाँ पे? चित्तरंजन एंड वाराणसी. कोचेस, रेलवे के कोचेस जो सीट्स पे आप बैठते हो वो कहाँ पे बनते हैं? तो वो चेन्नई में. सीमेंट तो भाई इन स्टेट्स में वो बनता है. पेपर जो हम हमेशा डेली यूज करते हैं, ओके, वो पेपर कहाँ पे बनता है? तो ये सारे स्टेट्स हैं. Okay students, so here our chapter number 4 is completed. Okay, this chapter is completed. Now students, you have to read this chapter once again and you are also have to prepare this map. In previous video I have shown how to make this. Okay, and read the chapter thoroughly once again and now write this meanings in your fair note. Then read this, refresh, recall once again. Okay, and at the last you are supposed to solve this textual exercise by your own self. Okay students, if you need any kind of help in this we will discuss and do it, but before that you are supposed to do it by your own self. Okay, so students, I hope
Now the concept of this whole topics is clearly understood by you. So once again go through the chapter, okay, and then try to solve the exercise given in your textbook after the chapter. Okay, so here I declared that our chapter number 4, India and cotton industries, is completed. Okay, so try to solve the textual exercise, and here I end up our today's lecture. So students, take care. Bye bye.